why this actually happens, and this happens twice a day. There are two highs twice a day. There is a maximum pressure and twice there is minimum pressure. So normally 1000 hours and 2200 hours local time you find the maximum atmospheric pressure, and 04 and 1600, 4 o'clock morning and 4 o'clock evening, you find the atmospheric pressure is minimum. So that's why it's called semi-diurnal, because there are two highs and two lows. And the difference between maximum and minimum values, again, range of semi-diurnal atmospheric pressure. So when you're writing logbook, you can immediately imagine if you're writing at 4 o'clock, you find the minimum pressure. If you're writing at 10 o'clock or 2200 hours, you will find the day's maximum pressure there. Now again, something called barometric tendency. Now this you have to understand. Now you have understood the barometric pressure, semi-diurnal, barometric tendency, which will also help us understanding even when we are sending the weather reports. Now barometric tendency is simple, rate of change of pressure with time. That it is the difference between atmospheric pressure at the time of observation and atmospheric pressure 3 hours earlier. Now meteorologists have divided these 24 hours into synoptic hours. So various synoptic hours are 0, 6, 12, 18, 24, or even further if you divide every 3 hours, 03, 06, 09, 012. So every 3 hours are basically called synoptic hours. So normally if you read the barometric pressure and what was the barometric pressure 3 hours earlier, now you can see whether it is rising or falling. So that is called the barometric tendency. The barometric tendency is rising. The barometer is rising. अभी आप वॉच पे जाते हो, when we study this aneroid barometer, आपने देखा होगा लॉग बुक में भी लिखा है, and on the barometer also, so you can make out that pressure is going up, so you are happy. If you see the pressure is falling, then you say there is some, we are heading into low pressure, strong winds. So barometric tendency gives the forecaster a good idea of rate of change of pressure, which is useful for predicting the movement of these pressure systems. Now इसी के साथ आपका आ जाता है आइसोबार्स. ये जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इट इज चेंजिंग ऑल्सो. इट इज नॉट कि एक बार जहाँ पे प्रेशर सेम है वो सेम नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनामिक. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पे उन्होंने वेदर रिपोर्ट बनाई है, दे सी दिस, दे मेजर द प्रेशर, दे हैव द रिपोर्ट्स. If you see the atmospheric pressure in Delhi, if you see in Lucknow, Bombay, if the atmospheric pressure is same, so you can join the line indicating same pressure. So this is what basically is isobar on a weather map. So जब आप weather map और meteorologists बनाते हैं, so they see, they study the atmospheric pressure. So isobar is a line drawn on a weather map joining all places having same pressure at the time when the weather map was drawn. So isobar का meaning है, iso means same, bar means pressure. So atmospheric pressure is dynamic, it may change frequently, hence its value when stated holds good only for that particular time. जब आपने note किया है on the bridge, so it is good only for that time. You must have seen every hour when there is a little low pressure or bad weather, you see the pressure keeps on changing every half an hour. We start writing even for every hour. So for standardization, isobars are drawn at 4 millibar intervals and the pressure denoted by isobar is again divisible by 4. तो अगर आप वेदर मैप देखिए तो आपके जो आइसो बार्स हैं, दे आर बेसिकली एट एन इंटरवल ऑफ 4, 1020, 24, 28, 32. सो दिस इज अगेन अ कस्टमरी, इंटरनेशनली इट इज फॉलोड दैट दे आर आइसो बार्स आर एवरी 4 मिली बार के इंटरवल पे होंगे एंड ये जो इंटरवल है दिस इज 4. अब यहाँ से आपको क्या पता लगता है? इफ आई लुक एट दिस इज द वेदर रिपोर्ट, इफ आई गेट एंड दीज आइसो बार्स आर ड्रॉन, दैट मीन्स these areas are having same pressure at a particular time. यहाँ से एक simple very good information that isobars if they are far apart, अगर इनके बीच में distance ज़्यादा है, that means the pressure will change maybe 100 miles. So this 4 millibar pressure may, this distance between them may be 100-200 miles. So the pressure is changing very slowly. That means you get very weak winds. You will not have strong winds. So looking at the weather report, अगर आपको isobars की इतनी knowledge है कि यार isobars होते क्या हैं, and if they are separated little far apart, कि यार good weather, so इतना
आपको ड्रेस्टिक और सडन हाई स्पीड विंड्स नहीं मिलेगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू सी, इफ दीज आइसोबार्स आर क्लोजली रिलेटेड, अगर आइसोबार्स नजदीक नजदीक हैं, सी लाइक हियर 1000, 1008, 1012, so then if I am coming, say ship is coming in like this course, so then you see the pressure is 1016, and within maybe 50 miles or 100 miles it is changing by 4 millibar within 50 miles. So after 2 hours the pressure is dropping by 4 millibar. You can expect there will be strong winds. So this is a good thing that isobars give us on the weather map. So isobars के ऊपर अगर आपको notes आता है, write a short notes on isobar. You know that isobars are the lines drawn on the weather map joining all the places having same pressure. And थोड़ा सा आपने उसको और elaborate करना है, 2 लाइन नहीं लिखनी सिर्फ कि yes this is the meaning of isobar, and फिर आप उसके ऊपर ये भी लिख सकते हो it is dynamic, it may change frequently, and for standardization isobars are drawn and depends on the number of marks कि आपके क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं. अगर ज़्यादा मार्क्स हैं थोड़ा आप स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर आपको से उसने if he has asked you 4 things, isobars, diurnal variation of pressure, lapse rate, so अगर 4 चीज़ें हैं, मेरा क्वेश्चन कितना है, 20 मार्क्स का है, so each thing becomes 5-5 मार्क्स की आ गई, isn't it? So 5 मार्क्स में से 4 मार्क्स लेने के लिए अगर मैं एक ही लाइन लिखूंगा तब तो नहीं मिलेगा. So you have to elaborate your answer, and अगर time है you can draw this. If this isobars are far apart, weak winds, इससे जो है examiner gets impressed, the boy has got a knowledge, so उसको पता है isobars क्या होते हैं, and of course we will do a better job on the ship. So आपके impression जो है sketches में आपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. अब इसी के साथ एक और आ जाता है isobars. Isobar तो very easy. Now isobars क्या है? Isobars are the lines drawn on the chart through places having same tendency, means same barometric tendency, means barometric tendency क्या, rate of fall. With what rate the atmospheric pressure or barometric pressure is falling are known as isobars. So or a line on the weather map connecting places having equal changes in atmospheric pressure. So that is called isobars. Isobars are line joining on the weather map having same pressure. यहाँ पे क्या है, having equal changes in atmospheric pressure within a given period of time. So isobars measure pressure tendency, value that describes both difference in barometric pressure at the beginning of a given period as well as pattern, it is falling or rising, or study how the pressure changes take place. So ये हमें इतनी value नहीं है, whereas it has of course much value for the shore meteorologists who are making this study, who are making these weather maps. But at least for knowledge purpose हमें पता होना चाहिए isobars and isobars क्या होते हैं. So isobar is of value to the forecaster because it shows the rate of change of pressure with respect to time. Okay. So I hope यहाँ तक all clear, very simple. कि कुछ भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी कई बार बन जाता है शॉर्ट नोट्स के तौर पे. 6 क्वेश्चन कैन बी देयर, 3-4 आइटम्स ही विल राइट. सो आई होप यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर. Yes. क्या कहते हैं? हाँ जी. Yes sir, isobars topic पे. Yeah, isobars, isobars. So it is nice. Just you can make this sketch and then you can show. So sketch से क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा सा elaborate भी हो जाता है and you are making the examiner understand what you know, isn't it? तो मैंने कई बार previous उसमें देखे हैं पेपर्स में कि आप खाली एक लाइन रख के छोड़ देते हैं. Not आप और the other candidates जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे, they just write isobar is a line joining a area of same pressure. इमेजिन 5 में से उसको 2 ही मार्क्स मिलेंगे. अगर आप उसमें लिख देते हो थोड़ा सा जैसे इसमें लिखा है कि दे आर ड्रॉन एट 4 millibar इंटरवल, द प्रेशर इज डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फिर आपने स्केच भी बना दिया, तो एग्जामिनर कहेगा यार 5 में से वैसे तो 5 भी बनते हैं, और क्या चाहिए. नहीं, 4 तो बनते ही. तो 4-4 मार्क्स अगर आपके सब में आ गए, 20 में से 16 मार्क्स बन गए. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटजी ऑफ द हाउ टू आंसर द पेपर. कैसे आपने एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करना है, हाउ यू impress him that what you know. Okay,
तो आज हम यहीं पे इसको इतना ही रखेंगे, एटमॉस्फेयर, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो आई डोंट वांट टू गिव यू सो मेनी थिंग्स टुगेदर। तो इसके मैं नोट्स आपको भेजूंगा, प्लीज़ पढ़िए, बुक में से भी पढ़िए, शुभ्रा साहब की बुक है। तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, व्हेनेवर यू आर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से थक जाते हो, फिर मेट्रोलॉजी पढ़ ली, डिस्कस कर ली, एंड आपके आंसर्स डेली तो नहीं पढ़ सकते, बट व्हेनेवर यू गेट टाइम, एंड आपने उसको रिटेन भी करना है कि उस आंसर को मैंने लिखना कैसे। सर इस फिगर में आइसोबार्स एंड आइसेलो बार, ये आइसेलो रेड वाला बार, सर आइसेलो बार। हाँ जी, ये आइसेलो बार है। यहाँ पे देखिए इसने दिखाया है, ये आपकी जो रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पे प्रेशर 0.1 प्लस 0.5, ये इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, -1, -2, -4। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज। आइसेलो बार इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर इज चेंजिंग, या एवरीवेयर प्रेशर इज चेंजिंग बाय 2 मिलीबार। यहाँ पे प्रेशर इज इंक्रीजिंग बाय +1 मिलीबार, 5 मिलीबार। तो यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर आ गया, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो लो प्रेशर आता जाएगा। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज इंडिकेटिंग। वेयर एज इन केस ऑफ आइसोबार्स, सो वहाँ पे तो उसने जस्ट ही हैज ड्रॉन द लाइन, दीज एरियाज आर हैविंग सेम प्रेशर। तो प्रेशर का एक ग्राफ जैसा बन रहा है कि हाउ द प्रेशर इज बेसिकली चेंजिंग। क्लियर? यस। चलो, ये तो हो गया एटमॉस्फेयर का। आज थोड़ा सा अबाउट हम अपना रीफर कंटेनर्स का कर लेते हैं, ताकि वो भी आपको, बिकॉज वो क्वेश्चन भी कॉमन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर द रीफर कंटेनर्स। सो इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हमने किया था, सो दैट बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन, जिन्होंने मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट डन द व्हाट वी कॉल दिस शिप्स, कंटेनर शिप्स, तो थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मैं दिला देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू राइट और आंसर द पेपर वेरी नाइसली। चलो, ओके। Yeah, we are here now the requirements for reefer containers। अभी हमने सारा तो स्टडी कर लिया कि थोड़ा सा we have understood containers है क्या चीज़, how they are carried and how I can load them, discharge them, उनको identification कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली अभी। अब आता है रीफर्स का। जैसे कल आपका क्वेश्चन था कि यार हाउ डू वी नो किस कंटेनर के अंदर क्या है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो। जो जनरल कंटेनर्स हैं उसकी हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, व्हाट इज स्टफ्ड हियर, बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑफ देम। बट व्हेन वी आर लोडिंग दिस रीफर कार्गो, रीफर कार्गो क्या चीज़ है ना, अगर आपने इतना समझ लिया, यू विल बी अ बेटर गुड ऑफिसर टू टेक केयर ऑफ दिस कार्गो। ना रीफर कार्गो इज अगेन refrigerated cargoes invariably perishable। perishable means ये खराब हो सकते हैं। these are expensive cargoes and high freight cargoes to a greater or lesser degree, and their safe carriage depends on maintaining suitable storage conditions during transportation। now जिसने भी कंटेनर शिप पे काम किया है, all the time we have to send daily reports to the company भी हम उसका कितना टेम्परेचर है,
कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इट्स प्रॉपरली रनिंग, इट्स एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज उसके अंदर जो स्टफ है दैट इज वेरी कॉस्टली. And sometimes it happens. For example, like I was on a meat trade between South America and Europe. So we used to carry these 800-900 containers with processed beef. You can imagine one container is having 30 tons of processed beef. अगर आप उसकी cost लगाइए, I don't know how much you have assisted the captain in calculating the provisions. So normally you see ship पे provisions आते थे ना, receive तो किए होंगे आपने. Yes. Isn't it? So कभी चांस मिला था वो देखने का कि किस चीज़ की क्या कॉस्ट है. सो सर कैप्टन हैज टू कैलकुलेट कि भाई कितना हमने सामान रिसीव किया, हाउ मच इज अलाउड पर मंथ, वो कितनी कॉस्ट बैठ रही है. तो समटाइम द कैप्टन कैलकुलेट्स विद चीफ कुक एंड सीनियर कैडेट भी कभी, या थर्ड ऑफिसर, आई थिंक नाउअडेज थर्ड ऑफिसर असिस्ट, इजंट इट. तो सारा का सारा अगर उसमें आप कॉस्ट देखिए, नाउ 30 टन्स ऑफ मीट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू क्रोर्स. एंड अगर हमने उसकी केयर नहीं की, केयर नहीं क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर हमने नहीं मेंटेन किया, या वो रीफर बंद हो गया, या लोडिंग के टाइम में वो ठीक नहीं था, पैसेज में ठीक नहीं था, और हमने ध्यान नहीं दिया, यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन. तो एक बार अगर समथिंग इज गॉन बैड, अगर भाई आप सर्टन थिंग्स यू कीप इन योर फ्रिज एट होम, अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते, आपका फ्रिज बंद हो जाता है, ऑल द फूड गोज बैड. यस. तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है कि जब हम व्हेन वी कैरी रिफर्स, उसके लिए देयर इज सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. फर्स्ट, इवन पहले तो सबसे पहले शुरू होगी लोडिंग के टाइम में कि व्हाट ऑल प्रिकॉशन वी हैव टू टेक व्हाइल लोडिंग दिस रिफर इफ आई एम द ड्यूटी ऑफिसर. रेफ्रिजरेटेड कार्गोज इंक्लूड बोथ फ्रोजन एंड चिल्ड गुड्स, including fresh fruits, vegetables. Lot of things are carried in frozen state. Not only the meat, there are a lot of other things. Medicines है कई बारी वो भी फ्रोजन स्टेट में. आजकल nowadays you must be seeing आपका कोविड वैक्सीन जो हमारा, देखिए उसके लिए स्पेशल कंटेनर्स बनाए हैं, isn't it? स्पेशल रिफर कंटेनर्स देखा कभी टीवी पे? देखते हो टीवी? -70. Yeah, that is also to be carried at some -8 or -10 something. I do not remember. This vaccine के लिए इसको अदरवाइज वो खराब हो जाएगा ना. इमेजिन अगर ये रिफर और यही कंटेनर, मेडिसिन का कंटेनर, कोविड वैक्सीन का कंटेनर आपके शिप पे यू आर टेकिंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप और कहीं पे भी ले जा रहे हो, अभी उसका अगर टेम्परेचर थोड़ा सा फर्क हुआ तो क्या होगा, वैक्सीन खराब. Isn't it? And then they will say कि अच्छा भी हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, जैसे भी जहाँ से लेके आए वहीं वापस ले जाओ. इमेजिन द लॉस. तो इसके लिए ये जो रिफर कार्गो है, इसको आपने वेरी सीरियसली लेना, और जब भी लोडिंग डिस्चार्जिंग हो आपको देखना है. सो हमें थोड़ी सी की नॉलेज भी होनी चाहिए. सो जनरली फ्रोजन गुड्स डू नॉट सफर इफ ओवर कूल्ड, वेयर एज चिल्ड गुड्स कैन डैमेज एट लो टेम्परेचर्स. सो ये सारा डिपेंड करता है. नाउ ही सेज द सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन is dependent on the carriage instructions, isn't it? So सबसे पहले तो है carriage instructions कि अभी सपोज मैंने ये इंजेक्शन ही वैक्सीन ही कैरी करना है, तो मेरे को इंस्ट्रक्शन तो क्लियर होनी चाहिए भी किस टेम्परेचर पे लेके जाना है. अगर वही गलत हैं तो व्हाट कैन आई डू, which define the condition in which the goods are to be carried. So ये शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शिपर is the person who ships the cargo, so it is his responsibility to give me clear instructions in writing what is to be done. If these instructions are incomplete, inadequate, contrary or wrong, problems can be expected. For shipper, risk of loss of cargo, and for the carrier, risk of claim. क्यों, cargo damage हुआ तो give the claim. So the responsibility for specifying carriage instruction is that of the shipper, owner of the goods, and only the shipper knows the full nature of goods, their prior history and their requirement. अब आप अभी तक तो ठीक है, यू आर वर्किंग विद ड्यूटी ऑफिसर, तो नॉट सो मच बॉदर्ड. अब आप इंडिपेंडेंट ऑफिसर जब आओगे, सिंपल कि भाई ठीक है, जब मैंने वॉच पे आना है या उससे पहले कि मेरे को नॉलेज होनी चाहिए कि हमने कितने रिफर लोड करने हैं, कहाँ पे लोड करने हैं, और उससे पहले उनका क्या क्या चीज़ है, किस टेम्परेचर पे रखना है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग व्हेन वी रिसीव द रिफर्स, तो उसमें सारी प्लान पहले से बनती है. कंटेनर्स में आई टोल्ड यू द प्लान इज मेड वेल बिफोर. Everything is arranged at least 1 or 2 days before the ship arrives, and ship ने
अपनी इंफॉर्मेशन प्लानर को भेज दिए कि भी मेरे पास इतने सॉकेट्स हैं, आई हैव 500 और 600 सॉकेट्स, प्लस उसकी लोकेशन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ सॉकेट्स की लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ अभी आपने लोकेशन तो भेज दी, जस्ट इमेजिन, एंड जब आप लोड करने को आए आपने प्लग इन कर दिया एज अ ड्यूटी ऑफिसर, आप सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर थे, आपने उसको प्लग इन किया, कह वो तो चलता ही नहीं प्लग, आ गई ना प्रॉब्लम। तो इसलिए नॉर्मली चीफ ऑफिसर्स क्या करते हैं, दे कीप अ रिकॉर्ड, जैसे जैसे आपके भी द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो भी होगा उसको चेक करके चीफ ऑफिसर को बताएगा सर इतने रीफर सॉकेट्स नहीं चलते या इतने हमारे पास स्पेयर हैं, इतने हमने। सो बिफोर लोडिंग, बिफोर एनीथिंग हैपन्स, सबसे पहले तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वी हैव टू कीप द शिप रेडी, isn't it, preparing holds, so same way रीफर जो है, रीफर कंटेनर्स दे कैन नॉट वेट, अभी आपने शिप पे रख दिया एंड देन बत्ती साहब गोज एंड स्टार्ट्स चेंजिंग द रीफर सॉकेट, तो उतना टाइम तो रीफर बंद रहेगा। तो इसलिए ऑल दीज थिंग्स आर अरेंज्ड। सो आपकी भी ड्यूटी यही है कि दैट बिफोर इट कम्स टू द शिप, बिफोर रिसीविंग, सो आई हैव टू मेक श्योर कि भैया इसकी लोकेशन ठीक है, जो लोडिंग का स्टीविडोर है उसको भी पता है कहाँ पे लोड करना है, सम टाइम द सॉकेट आपका बे में आगे है पीछे है किस तरफ है, तो वो भी उसकी लोकेशन भी जो गेंट्री वाला उसको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रख दिया देन यू रियलाइज ओहो सॉकेट तो फॉरवर्ड की तरफ था, मशीन उसने पीछे की तरफ रख दी। तो ये स्मॉल थिंग्स एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू शुड नो। सो सबसे पहले तो शिपर टू प्रोवाइड द वेसल एटलीस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू रीफर मैनिफेस्ट। तो आपको रीफर मैनिफेस्ट की कॉपी जो है चीफ ऑफिसर के पास आ जाती है। सो उसके अंदर कंटेनर नंबर, कॉमोडिटी स्टफ्ड इनसाइड द कंटेनर, वेदर फ्रोजन और चिल्ड, टेम्परेचर टू बी मेंटेन। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि यस व्हाट इज रीफर मैनिफेस्ट, इट इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस की टोटल डिटेल, क्या कार्गो है, कंटेनर नंबर कितना है, इवन क्वांटिटी इनसाइड कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करनी है, स्टोरेज लोकेशन। नाउ दिस लोकेशन विल बी एग्रीड विद द चीफ ऑफिसर, शिपर को तो नहीं पता ना, उसको क्या पता आपने कहाँ लोड करना है। सो दिस विल बी गिवन बाय द चीफ ऑफिसर कि भाई इस स्लॉट में, इस बे में, इस रो में रखना है। एनी स्पेशल फीचर्स, प्री स्टफिंग, सैनिटेशन, ये सारा आपका रीफर मैनिफेस्ट में लिखा होगा। वेंटिलेशन, अगर उसकी वेंटिलेशन चाहिए। सो एनीवे, सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या आपके पास कंटेनर नंबर, कॉमोडिटी एंड द टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर टू बी मेंटेन। सो ये चीज़ आपके पास जब आप उसको लोडिंग करने आओगे दैट टाइम यू हैव टू सी दैट दिस रीफर इज प्रॉपर स्टोरेज पोजीशन देखनी है आपने कि जो जो प्लान किया वहीं पे इसकी लोडिंग होनी चाहिए, एंड इट इज इन कंसल्टेशन विद द श्योर पीपल जिन्होंने लोड करना है। एंड जैसे ही आपने इसको लोड कर लिया, व्हेन दे लोडेड, so you can also have a look, the shore people also have a look, it is not damage। बोल तो नहीं है कि ठंडी हवा सारी बाहर आ रही है तो हो गया काम से, इट इज इन गुड कंडीशन, देन यू लोड, एंड जैसे ही आप लोड करोगे देन हैव इट प्लग्ड। जो भी आपका कंपनी का रूटीन है कि आपने उसको प्लग इन करना है। सो यही आंसर आपने लिखना है कि यस रीफर्स के लिए procedures for loading and taking care, what extra precautions कि the moment I load the reefer I'll have an inspection that it is in good condition, no damage, and then have it plugged on। so जैसे उसको पावर आएगी then check that it is working in good condition, and same time you can tell the electrical officer, he can also have a look कि सर जरा देख लीजिए ये ठीक चल रहा है कि नहीं, ये तो है नहीं। it has happened with me also, सेकंड ऑफिसर ने रात को लोड किए रीफर, उसके ऊपर दूसरे और 4 रीफर लोड कर दिए जनरल कार्गो के, एंड मॉर्निंग में बत्ती साहब कम्स एंड ही फाइंड्स द रीफर इज नॉट वर्किंग, एंड देन ही टेल्स मी कि सर ये रीफर तो रिपेयर भी नहीं हो सकता, इसका तो कंप्रेसर जल गया हुआ। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो रीफर तो ठीक है उठा सकते हो, बट उसके ऊपर जो 4 रीफर दूसरे कंटेनर रखे हैं जनरल कार्गो के, उनको भी शिफ्टिंग, उसके भी शिफ्टिंग के पैसे। तो यहाँ पे फॉर अ ड्यूटी ऑफिसर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या करना है कि व्हेन यू नो दैट देयर इज अ रीफर गोइंग टू बी लोडेड, जैसे ही आपने लोड किया एंड देन यू शुड इन्फॉर्म इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, सर इसको चेक कर लीजिए, जो भी है जिसकी भी ड्यूटी है। नॉर्मली यू हैव 2-3 बत्ती साहब व्हेन दिस लॉट ऑफ रीफर्स आर कैरिड, एंड व्हेन ही सेज इट इज ओके देन एवरीथिंग इज गुड, एंड देन यू कैरी ओके। फिर आ जाती है आपकी लोडिंग के बाद लैशिंग। आपका काम यही है कि ऐसा आपने किया, अपनी प्लान में लिख लिया,
time of loading and temperature at the time of loading. Now ये reefer किनारा से disconnect होके आएगा, so you will find if the reefer का जो temperature है, set temperature जिसे कहते हैं, the set temperature is say again -25, but by the time you load, अभी आपके लोडिंग प्लान में या रीफर लिस्ट में चीवॉसर ने दिया होगा कि ओके वी सेट पॉइंट -25 माइनस, बट आप लोड कर रहे हो तो हो सकता है उसका टेम्परेचर -18 पे आ गया हो जब आपने लोड किया है। क्यों कि इट हैज़ डिस्कनेक्टेड, ट्रेलर पे आया, गैंट्री के नीचे आया, थोड़ा टाइम लगा, 10-15-20 मिनट, कुछ नहीं होता, बट जैसे आपने कनेक्ट किया फिर वो ठीक वापस आ जाना चाहिए। तो आपने ये देखना दैट द मशीनरी इज इन गुड वर्किंग कंडीशन, विच इलेक्ट्रिकल ऑफिसर विल टेल यू कि all alarms are okay, everything is all right, and then you load the next one. So यहाँ पे इतनी सी मिस्टेक से lot of time the problems become bigger. आपने होल्ड के अंदर लीफर लोड कर लिया है and then you realize कि ये तो काम करता ही नहीं। So normally इसका क्या सिचुएशन होती है, you got the technician ashore, जो शिप ओनर है उसने एक टेक्नीशियन भी रखा होता है, एक या दो टेक्नीशियन होंगे। So you tell the स्टीवियर का जो इंचार्ज है, सुपरवाइजर है कि भैया दिस रीफर इज, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ही विल सेंड दैट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो किनारा का इलेक्ट्रीशियन है वो आएगा, ही विल चेक जब तक शिप पोर्ट में है। सो यू गो टू डू दिस दैट इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम टेक्स प्लेस, यू कॉल दैट इलेक्ट्रीशियन एंड लेट देम फिक्स अप, एंड मीन टाइम हमारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं वो भी उसके साथ काम करेंगे, चेक करेंगे एवरीथिंग गुड लैशिंग, इट मस्ट बी प्रॉपरली लैश्ड। अब ये थी थोड़ा सा नाउ अगेन आपने चीवॉसर्स के साथ काम किया होगा। नॉर्मली दिस स्पेयर्स आर मेंटेन, इट डिपेंड्स इफ चीवॉसर इज मेंटेनिंग और इंजन साइड इज मेंटेनिंग। जो भी मेंटेन करते हैं स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल मैनुअल्स और रीफर कंटेनर शैल बी मेंटेन। यूजुअली दिस बुक्स आर बुकिंग लाइन वाइज एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री ऑफ दिस स्पेयर शैल बी टेकन। ये आपके पास होनी चाहिए, विच यू हैव टू सेंड इट टू द कंपनी बिकॉज दे आर प्लानिंग टू लोड द रीफर्स। अगर आपके पास स्पेयर्स ही नहीं है, सपोज आपके रीफर खराब हो जाता है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो इसके लिए कंपनी आपको इनफ स्पेयर्स पहले से दे के रखेगी, 3-4 कंप्रेसर आपको स्पेयर दे के रखेगी। बाई चांस किसी रीफर कंटेनर का कंप्रेसर जल जाता है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज, द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कैन चेंज दैट। सो एडिक्वेट स्पेयर्स होने चाहिए। And prior loading, check the plug points are okay, sufficient spares are carried, position of reefer machinery and plug point to be informed to the gantry operator. On loading, plug in the reefer and check working of machinery. Check temperature reading, compare with the set temperature जो मैंने आपको बताया as mentioned in the manifest। वो आपकी कॉपी आपके पास होगी, photocopy is not a problem nowadays। एंड चेक टेम्परेचर चार्ट, तो आजकल तो नहीं है, पहले ये होता था पार्टलो चार्ट लाइक अ कोर्स रिकॉर्डर की तरह, उसके ऊपर क्लॉक चलती रहती थी और एक पेन होता था जिसमें इंक है, वो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करता जाएगा। बट नाउ डेज दिस थिंग इज नॉट डन। आजकल दे पुट अ चिप, तो हर कंटेनर के अंदर, रिवर कंटेनर के अंदर चिप लगा हुआ है दैट कीप्स रिकॉर्डिंग, कब रिफर ऑफ हुआ, कितने बजे, टाइम, डेट, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। समझ गए। सो ये नहीं कुछ कह सकते कि नहीं जी हमारा व्हेन द रिफर वाज ऑन द शिप इट वाज वर्किंग गुड। सो दे कैन मेक आउट, जैसे रिफर कंटेनर किनारा जाएगा दे पुट टू द सॉफ्टवेयर एंड दे कैन रीड कहाँ पे किस दिन। सो रिफर्स एंड कंटेनर्स आर कमिंग फ्रॉम फार अवे, कहाँ पे खराब हुआ, ट्रक पे खराब था या शिप में खराब हुआ, ये सारी चीज़ आपको बेसिकली इसका रिकॉर्ड किया जाता है। So new containers have electronic data recording which cannot be adjusted. So avoid loading more than 2 high on extreme rows for ease of monitoring. So ये भी आपने check करना है. This is also very important. Check with the chief officer. Normally we don't load on the extreme rows. क्यों? उसको monitor करना मुश्किल है. Somebody can fall. And we try not to load too high because उनको we cannot check during the voyage. So ये जैसे जैसे chief officer plan करेगा, it depends on the ships. Nowadays of course we load 3 high 4 high because आपने देखा कंटेनर्स में वी हैव द लैशिंग ब्रिज है, उसके ऊपर जाके आप 3 हाई रिवर का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो। सो वंस ऑन बोर्ड एंश्योर कंटेनर इज लैश्ड प्रॉपरली
and prior sailing, detailed list of reefers on board their location and temperature setting is made. So ये पूरी की पूरी list आप बनाओगे, आप CWOSR बना के आपको देगा. And then also we check daily. So anything else you have faced? मनीष, आपने reefer load किए होंगे, कुछ any problem आपके टाइम में? With the reefers? सर कोल्ड ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर दो. जो सर कैरी तो कोल्ड ट्रीटमेंट सर डेली उनका जो वेंट सेटिंग है और सेट पॉइंट है वो चेंज होते थे. ओके, वो क्यों होता है सर? वो डिफरेंट है. दैट इज अगेन अ डिफरेंट. दैट कोल्ड ट्रीटमेंट मींस अगेन इज लाइक अ इंसुलेशन, कि हम इतना उसको रखना है, उसका सेट पॉइंट, उसको वेंटिलेशन देनी है. बट बेसिकली अगर आप आज देखिए, जो मोस्ट ऑफ द रीफर्स हैं दे आर लाइक आपके जैसे मैंने आपको फिगर दिखाई थी, इस लाइक अ फ्रिजेस. आपने एक बार प्लग इन कर दिया, सो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर. नॉर्मली वी कैरी दिस स्टफ एट वेरी लो टेम्परेचर. तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर वाले जो हैं उनका ऊपर इतना लो टेम्परेचर नहीं होता. That is what we are saying, that frozen and chilled and all that. When you carry these reefers which are very low temperature, -26, -18, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो कि आप controlled atmosphere में reefers के साथ करते थे. So basically most of the time nowadays this reefers technology is also such कि controlled atmosphere के कम है. वो हो सकते हैं जहाँ पे जैसे आपका टेम्परेचर है ज़्यादा लो नहीं है, पॉजिटिव टेम्परेचर है 4 डिग्री 5 डिग्री पे आपने रखना है. बट जो आपके फ्रोजन या चिल्ड गुड्स हैं, दे आर स्पेशली फ्रोजन वंस, दे आर कैरीड एट वेरी लो टेम्परेचर. तो इसके साथ और प्रॉब्लम क्या आती है, आई डोंट नो वेदर यू फेस्ड, कि जब आप इसको चेक कर रहे हो कई बार, अभी आप कंटेनर शिप है उसमें ये तो है नहीं कि सारे लोडेड कंटेनर होंगे, एम्प्टी भी कैरी करते थे नहीं. यस और नो, एम्प्टी कंटेनर्स भी कैरी करते थे, इजंट इट? हाँ, अब आपने एक तो रीफर लोड किया जिसके अंदर विच इज वी कॉल लाइव रीफर, जिसके अंदर एक्चुअली सामान भी है, एंड उसके साथ हो सकता है आपने एम्प्टी रीफर भी लोड किया. रीफर भी एम्प्टी जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होना है वापस. सही बनाया फेस्ट. समटाइम बाय मिस्टेक आप क्या करते हो, जो एम्प्टी वाला है वो बंद होता है, उसका प्लग लगा दिया, और ये जो एक्चुअली जिसके अंदर कार्गो है उसका प्लग ही नहीं लगाना भूल के, एंड कई बार एक दिन हो जाता है. फिर जब आप सेकेंड टाइम जाओगे गिनती करोगे, सो इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना. इट इज हैपनिंग टुडे ऑल्सो कि एम्प्टी रीफर्स भी आपके शिप में हैं और दूसरे लोडेड रीफर्स भी हैं. तो ये नहीं हो कि आपने गलती से, क्योंकि आप तो नहीं सब काम कर रहे, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल, क्रू भी है, उसको क्या पता, उसने प्लग निकाला, उसे क्या पता कौन से में कार्गो है. वो तो आपको पता है ना, आपके पास कार्गो प्लान है, किसमें कार्गो है किसमें नहीं है, उसने उठा के लगा दिया. ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. सो यू गॉट टू बी केयरफुल. सो अगेन इफ यू सी ड्यूरिंग द वॉयज, चलो ये तो हो गई आपकी लोडिंग. मॉनिटरिंग रीफर कार्गो एट सी, ऑल रीफर कंटेनर शैल बी मॉनिटर्ड बाय चेकिंग फिजिकली एटलीस्ट ट्वाइस. सो दोनों मॉर्निंग इवनिंग वी चेक द टेम्परेचर दैट इट इज इन गुड वर्किंग कंडीशन, एंड ऑल दिस डेटा entered of course today every day we send to the company because communication is fast. मेल के थ्रू आपका ये जो शीट है, टेम्परेचर शीट है, इट गोज टू द कंपनी एंड कंपनी ऑल्सो कीप्स अ ट्रैक दैट एवरीथिंग इज गुड वर्किंग कंडीशन. टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जो है वो सब देखते हैं, एंड अगर बाई चांस ख़राब हो जाता है तब आपको तब भी इन्फॉर्म करना है. सम रीफर कंटेनर्स विद स्पेशल VIP कार्गो कम विद इंस्ट्रक्शंस फॉर मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. तो ऑफ कोर्स CWOSers डू टेक केयर, बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ यार ये जो रीफर है लोडिंग टाइम में क्या देखना है. एट सी में ऑफ कोर्स एज अ थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर यू डोंट गो, द क्रू गोज फॉर चेकिंग, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर गोज, कैडेट्स you must have gone checking at sea. So during the daily reefer container checks, condition shall be checked. Power supply, cooling water supply maintained in case of water cooled machinery. Present actual temperature आपके उस पर कितना है, अगर पार्ट लो चार्ट तो नहीं है, डिजिटल इंडिकेटर्स हैं उस पर ठीक दिखा रहा है एज पर द मैनिफेस्ट. Verify data logger if any disruption of power supply or fault in the unit, and any alarms displayed on the digital indicator.
तो ये तो ऑफ कोर्स एट सी है, बट सूनर और लेटर यू विल बी इन चार्ज. Control box firmly tightened, prevent any water damage, any abnormal noise, and in case of reefer container malfunction, facts must be reported to the office. And repair work on malfunctioning reefer must be undertaken with the best efforts. So, क्योंकि reefer अगर खराब हुआ तो उसका अंदर कार्गो खराब हो जाएगा. We cannot wait. तो इसके लिए वो कहते हैं कि yes, obligation upon the carrier, that is ship, and the ship's crew to exercise ड्यू डिलीजेंस इन प्रिवेंटिंग एनी कार्गो डैमेज. तो ये तो आपका था रिफर्स का कि लोडिंग सेम वे डिस्चार्जिंग, अनप्लगिंग. समटाइम गैंट्री वाले दे आर टू फास्ट, तो आपने रिफर अनप्लग किया नहीं, उसको ऊपर से तो दिखता नहीं, एंड दे लिफ्ट द रिफर एंड आपका सॉकेट टूट जाता है. और 440 वोल्ट है. तो ये केयर भी आपने रखनी है कि जब आपने प्लग इन करना है तो प्लग आउट के टाइम में भी यू गॉट टू बी केयरफुल. ठीक है, आई होप क्लियर. सो इफ एनी क्वेश्चन कम्स, व्हाट ऑल द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यू विल टेक फॉर लोडिंग, प्रायर लोडिंग रिफर्स, आई होप यू विल बी एबल टू राइट. नहीं, इतना याद रहेगा? क्या कहते हैं? यस सर, कुछ याद रहेगा, कुछ पढ़ेंगे तो याद होगा. हाँ, कोई नहीं, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए. देखो ना, अगर आपने, ठीक है, आई नो यू हैव वर्कड, एग्जांपल यू हैव वर्कड ऑन टैंकर, बट अभी आपने जस्ट इमेजिन करना, हाँ यार मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ कल कंटेनर शिप पे, अब कंटेनर आएगा, यू कैन सर्टन थिंग्स यू कैन. देखो अभी आपने अगर ध्यान दिया है, आपने देखो आपस में डिस्कस किया है, तो उतना तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ. चलो एक आधा पॉइंट छूट जाएगा, कोई बात, बट यू कैन रिमेंबर कि हाँ यार कार्गो आ रहा है, उससे पहले माई शिप इज रेडी और नॉट. आपने पॉइंट सॉकेट सब देख लिए, फिर जैसे कार्गो आता है उसको आपने प्लग इन कर दिया, एंड प्लग इन करने के बाद कि जी उसकी मशीनरी चेक करेंगे, मशीनरी चेक की है, एवरीथिंग इज ओके. तो लोडिंग से पहले इट इज़ नॉट डैमेज, इट इज़ इन गुड कंडीशन, विल जस्ट हैव अ इंस्पेक्शन कि अब इट इज़ इन गुड कंडीशन, लोडिंग इन प्रॉपर स्लॉट, प्लानिंग, इजंट इट. ये भी आप ही की ड्यूटी है, तो है नहीं किसी और सेल में लोड करके चला गया. So planning, yes, I will check it is going in proper slot जो उसके लिए है, and then condition ठीक है, पावर लगाई, मशीनरी ठीक है, and then उसके बाद lashing, and gantry people को you are to keep it in touch. So 2-3 बार थोड़ा सा पढ़ोगे, so it is very easy. चलो अब एक कंटेनर्स में एक एंटी हीलिंग सिस्टम होता है, इस पर भी कभी आ जाते हैं नोट्स. एंटी हीलिंग सिस्टम क्या है? कंटेनर ट्रेड इज सच कि कंटेनर शिप की जब लोडिंग होनी है उसको आपने सीधा रखना है. अगर उसमें ज़्यादा लिस्ट हो गई तब भी लोडिंग में प्रॉब्लम आएगी. वो लिस्ट को करेक्ट करने के लिए जैसे हम बल्क कैरियर दूसरे में करते हैं कि ओके जी पंप आउट वाटर फ्रॉम वन टैंक एंड फिर या दूसरे को बैलास्ट करना है, तो बहुत टाइम लग जाता है. इतना टाइम तो नहीं, बिकॉज द शिप लोड्स अबाउट 40-45 कंटेनर्स पर आवर. तो इस शिप को अपराइट करने के लिए देयर इज समथिंग गिवन टू यू, एंटी हीलिंग सिस्टम. एंटी हीलिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली कि आपके जो 2 टैंक्स हैं, से 2 विंग टैंक्स हैं, साइड टैंक्स जिसे हम कहते हैं, वो बैलास्ट वाले ही हैं, उनको एक एक्स्ट्रा पंप से कनेक्ट किया जाता है. नाउ आई शो यू. यस, ये आपके 2 टैंक्स हैं, दीज आर द होल्ड्स. ये आपके साइड टैंक्स हैं, डबल स्किन में ये साइड टैंक्स होते हैं, नीचे आपका डबल बॉटम है इसके. तो इन टैंक्स को एक सेपरेट पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है, पाइपलाइन लगा के. एंड देन यू हैव द वॉल्स, इसका वॉल है, इसका वॉल, सक्शन, ये फिलिंग, सक्शन, ये फिलिंग, एंड ये सारी चीज जो है एक पैनल से कनेक्टेड है. ये पैनल आपके कार्गो कंट्रोल रूम में या कार्गो ऑफिस जो है वहां पे होगा. नाउ व्हेन शी टेक्स अ लिस्ट, तो क्या होगा, इस पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाइनोमीटर लगा हुआ है. तो जैसे ही जहाज पे लिस्ट हुई तो ये क्लाइनोमीटर इमीडिएटली यहाँ पे ग्रीन लाइट या पोर्ट लिस्ट हुई तो रेड लाइट दिखाएगा, एंड साथ में ये सिग्नल भेज देगा पंप को कि देयर इज अ स्टारबोर्ड लिस्ट. तो पंप क्या करेगा, इट विल स्टार्ट, इट विल सक द वाटर फ्रॉम स्टारबोर्ड साइड, एंड यहाँ से उसने सक्शन ली और इसको पोर्ट साइड टैंक में डाल देगा. तो ये वॉल्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे जो जो जैसे खोलने, सक्शन, ये डिस्चार्ज. तो इट इज सकिंग वाटर फ्रॉम हियर, पुटिंग इनटू द पोर्ट साइड. तो डबल इफेक्ट हुआ, एक तो ये डिस्चार्ज हुआ वाटर और यहाँ पे लोड हुआ. So discharging and loading, so ship immediately becomes upright.
सिमिलरली अगर पोर्ट लिस्ट है तो फिर ये इसको सिग्नल देगा, फिर जो पैनल है इसने पंप को कैसे चलाना है, ये पंप ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है कि फिर इसने यहाँ से सक्शन लेनी है और यहाँ पे पानी डाल देना है। सो दिस इज बेसिकली योर एंटी हीलिंग सिस्टम दैट दिस कीप्स द शिप। तो ये ऑटोमेटिक मोड भी है, मैनुअल भी है। अभी आपको कुछ काम करना है तो आप इसको ऑटोमेटिक में डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करता जाएगा। बट यू नो शिप में काफ़ी सिस्टम होता है ऑटोमेशन, बट सारे चीज़ तो काम नहीं करती, इज़न्ट इट, खराब हो जाती है, पीपल डोंट टेक केयर। तो अगर तो चल रहा है तो बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग, इस पे आपने ये भी लिखना है कि देयर आर लेवल इंडिकेटर्स। ये तो है नहीं कि ये पंप चल रहा है और ये टैंक खाली हुआ और पंप चलता रहेगा तो पंप भी गया, सारी उसमें कचरा मट्टी आ जाएगी। सो नॉर्मली दे हैव अ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। ये भी नहीं है कि इसको भर दिया और ये ओवरफ्लो हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। सो इस चीज़ को रोकने के लिए, सो दैट जब मिनिमम है देन द पंप टेक्स अ सक्शन, तब एक कट ऑफ हो जाना चाहिए पंप कि भाई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आया तो पंप विल स्टॉप। और सेम ओवरफ्लो के लिए हाई लेवल अलार्म, जैसे हाई लेवल टच किया तो ये पंप जो है इसको बंद कर देगा। सो दिस इज बेसिकली योर एंटी हीलिंग सिस्टम विच कीप्स द शिप अपराइट। सो ये तो आपकी है कि दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, एंटी हीलिंग ballast tanks are internally connected to each other by means of pipelines. When the ship heels to any of the sides, the healing sensor sends a signal for the change of ship's angle or ship's जो angle of list है या heel है with respect to the ship's upright position to the control panel. And this change in the healing angle is compensated by methods of auto transferring the water from heeled side to the other side of the ship, making the vessel upright. So this much system is, so technology अच्छी है, but I have worked on many ships, most of them auto system काम ही नहीं करता क्योंकि हम केयर ही नहीं करते। सो नॉर्मली पोर्ट में सेलिंग से पहले इसको ऑफ भी करना है, नहीं तो शिप तो रोल करेगा तो ये तो चलता ही रहेगा, तो आपका पंप भी गया। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये स्मॉल थिंग्स एज अ ड्यूटी ऑफिसर, एज अ जिसे कहते हैं ना कार्गो टीम का ऑफिसर, तो कार्गो को हैंडल करना एक पूरी टीम की बात है। तो इस चीज़ के लिए आपका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो इसमें भी अगर वो कहता है लेवल कंट्रोल स्विचेस आर आल्सो इंस्टॉल्ड, जो मैंने आपको कहा था लो लेवल हाई लेवल इन ballast tank involved with anti healing system to avoid low level or overfilling or pressurizing the tank. So the pump system, now this is a water pump type of system we have. What we call the pump system consists of electrical motor driven water pump which can be reversible or non-reversible, connected with remote control valves. So अगर by chance आपको आता है write short notes on anti healing system, so I think you can very well write, isn't it? So थोड़ा सा ये हीलिंग सिस्टम है क्या, आपको आई थिंक मैंने भेज दिए नोट्स, उनको पढ़िए। समझा मैंने दिया कि ये पंप सिस्टम जो है बेसिकली पंप इज ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। एडवांटेजेस, allows safer and rapid cargo loading and unloading, shortens the harbor time, saves port dues, reduces damage to ramp, rolling cargo and containers, ensures, अभी अब कई बार लिस्ट होगी तो रोरो शिप्स पे भी है, यू कैन इमेजिन आर कैरियर्स पे कि लिस्ट हुई तो जो आपने रैंप लगाया हुआ वो भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे कंटेनर शिप्स पे ताकि मेरा कार्गो डिले ना हो, कार्गो में उस डिले को रोकने के लिए एंटी हीलिंग सिस्टम इज वेरी गुड। सो इट एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ द शिप एंड पर्सनल। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है जो कि वी यूज़। तो इसमें भी क्वेश्चन है एंटी हीलिंग सिस्टम। तो आपने जितने मार्क्स हैं, ये नहीं कि उसको पूरा, ठीक है, रफ स्केच आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको रफ स्केच दिखाया। सो यू कैन नॉट, नो नीड टू मेक इट सो डेकोरेटिव बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। सो जस्ट मेक अ शिप, टैंक, सो यहाँ पे क्रॉस दिखा के वॉल्स एंड कंट्रोल पैनल, जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी एंटी हीलिंग सिस्टम को कवर कर देगी, ये सिस्टम होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। चलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनी डाउट्स?
सर जो एंटी हीलिंग टैंक होता है हम्म, उसके कुछ लिमिटेशन होंगे कि इतने डिग्री तक वो हील कर सकता है? नो टैंक की कुछ नहीं, टैंक तो नॉर्मली देखिए शिप जो पोर्ट में है तो कितना करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हीलिंग तो हम करने नहीं होने नहीं देंगे बिकॉज कार्गो के साथ हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया कि इसका पर्पस क्या है बेसिकली, कि टैंक तो आपका साइड टैंक है, तो जैसे बैलास्ट टैंक इट इज कनेक्टेड विद द बैलास्ट टैंक्स आल्सो, दीज आर साइड टैंक्स, बेसिकली डबल स्किन होती है, तो दीज आर कॉल्ड द साइड टैंक्स एंड डबल बॉटम आपका इसके साथ नीचे में है, नीचे इसके डबल बॉटम है। एंड ये आपके टैंक्स जो हैं इनको हीलिंग का नॉर्मली 2-3 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग नो? यस सर। तो इसमें कुछ नहीं, दीज आर लाइक नॉर्मल, एंड ये बैलास्ट लाइन से भी कनेक्टेड होते हैं, यू कैन यूज द बैलास्ट लाइन ऑल्सो एंड सेपरेटली। नॉर्मली हम इनको इसी पंप से यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग। सो हम क्या करेंगे, इसको आधा फिलअप कर लेंगे, 50% इसको भर लेंगे, 50% इसको भर लेते, दोनों को 100% नहीं भरते। सो नॉर्मली वी फिल अप 50% हियर, सपोज इसकी कैपेसिटी 300 टन है तो 150 इसमें 150 इसमें, तो 300 टन इसका है 300 टन इसका है, सो टोटल आपके पास 300 टन पानी। बट कई बार ठीक है मैक्सिमम कार्गो कैरी करना है तो उस वक्त हम इसको पंप आउट भी कर सकते हैं, इज़न्ट इट? अगर मैंने अभी सपोज इसके अंदर 300 टन या 400 टन पानी लेके रखा है तो उतना कार्गो मैं कम ले सकता हूँ। तो कई बार ये भी सिचुएशन आती है कि ठीक है हम देख लेते हैं भी ठीक है शिप इज़ अपराइट एट सी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका पानी कम भी कर सकते हैं, डीबैलास्ट भी कर सकते हैं इसको। बट जब आपने ऑपरेशन करना है तो सेफ्टी से, अगर कोई पूछे भी तो यू कैन टेल हिम यस सर इट कैन वर्क ऑन ऑटो मोड एंड इट कैन वर्क ऑन मैनुअल मोड ऑल्सो। यहाँ से आप मैनुअली भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट करनी है, इज़न्ट इट? सपोज आई वांट टू पंप आउट समथिंग एल्स या कुछ करना है, मैं लिस्ट क्रिएट भी कर सकता हूँ। स्टारबोर्ड टू पोर्ट ट्रांसफर है तो मैनुअली भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके तो सर उस समय पंप का जो सेंसर है उसको बाईपास करना पड़ेगा? या मैनुअल पे आएगा तो ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। आई ओपन द वॉल्स ना, यहाँ पे मैनुअल वॉल्स भी हैं जैसे नीचे में है, अब ये तो इंडिकेटर्स हैं ऊपर, ये नीचे है, तो अगर मेरे को स्टारबोर्ड साइड से पानी पोर्ट साइड में डालना है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को पता है कि ओके स्टारबोर्ड साइड का वॉल ओपन, पोर्ट साइड का वॉल ओपन, एंड देन स्टार्ट द पंप स्टारबोर्ड टू पोर्ट, इसका सक्शन वॉल खोल दिया, इसका फिलिंग वाला वॉल खोल दिया। तो वो सिस्टम भी आपके पास सिंपल होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वंस यू गो अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। ऑटो मोड में यहाँ पे आपका एक ऑटो मोड है, जैसे आपका स्टेयरिंग नहीं होता हैंड स्टेयरिंग ऑटो पायलट, चेंज ओवर करते हैं, तो यहाँ पे भी चेंज ओवर कर दीजिए, ऑटो मोड में रख दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली सेंसर जो है काम करना शुरू कर देगा। मैनुअल पे आएंगे फिर इट इज़ अप टू यू, अभी कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऑटो सिस्टम फेल हो जाता है, फिर आप मैनुअली करते हैं। तो जीवासोर होगा तो ही विल सिट इन द ऑफिस, तो उसको मैनुअली करता रहेगा, हाँ यार 1 डिग्री लिस्ट होगी या मैनुअली चेंज कर देगा, फिर स्टॉप भी करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। चलो ओके ऑल राइट, सो आज के लिए बहुत, यस। चलो ओके डियर गुड। सो ठीक है, मैंने ये जितना भी भेजा है, जब पढ़ना शुरू करोगे कुछ समझ नहीं आता तो बताइए। ओके सर। या ओके बच्चे, देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। या वेलकम वेलकम। अभी नेक्स्ट कार्गो में ये हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वीक से थोड़ा न्यूमेरिकल शुरू करें, नहीं स्टोरेज के थ्योरी पढ़ के बहुत बोर हो गए होंगे नहीं? कुछ कह रहे हो अभी, सेइंग समथिंग अभी? नो सर, आई एम नॉट सेइंग। या ओके, चलो नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, स्टोरेज कैसे प्लानिंग होती है, कैसे कार्गो प्लान कैसे बनाना है, कितनी स्पेस क्या होता है, ताकि आप भी थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद फिर ये हो जाएगा, फिर डेंजरस कार्गो पकड़ेंगे। चलो ओके डियर।
All the best. Then I am leaving. Okay, sir. Thank you. Yeah, Bye. 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 Thank you, sir.